پروگرام میں خوش آمدید ناظرین. آئی وش کے بریک کے دوران جو بات چیت ہو رہی تھی وہ بھی آپ سنتے تو آپ محظوظ ہوتے. اس کے اندر کوئی ایسا نہیں ہے کہ بریک کے اندر ہم کوئی اور بات کر رہے تھے, تسلسل وہی تھا لیکن زیادہ کھل کے ہم اس کے اوپر بات کر رہے تھے. ہم ہر سناریو کو دیکھنا چاہتے ہیں. پاکستان کے اوپر حملہ ہوا اور وہ قوم جس کے بارے میں سیاسی طور پر عموماً کہا جاتا تھا کہ جی ہم بٹے ہوئے ہیں, یک زبان ہو کے بولی, اور اب ہم پبلک ڈیمانڈ کا ذکر کر رہے ہیں کہ بھئی آپ نے جواب دینا ہے, کیوں نہیں جواب نہیں آ رہا. پاکستان جب جواب دے گا ہندوستان کو تو یہی ایفیکٹ وہاں پر جنریٹ نہیں ہوگا کیا؟ میں ذرا ڈیبیٹ کرنا چاہتا ہوں کہ ان کو ضرورت ہے اس چیز کی جس کے لیے وہ تمام کشت کاٹ رہے ہیں. دیکھیں اس وقت انٹرنیشنل کمیونٹی پاکستان کے ساتھ ہے, آپ کو ایک اپر ہینڈ حاصل ہے, ملٹری مائٹ آپ نے اپنی فل سپیکٹرم ڈومیننس آپ نے اپنی اسٹیبلش کر لی. جو میں اس وقت بات کرنا چاہتی, ویسٹ از شاکڈ. ابھی وہ شاک کے اینڈ ڈینائل کی کیفیت میں, وہ آہستہ آہستہ ایکسیپٹنس کی کیفیت میں آئیں گے. دا ملٹری مائٹس آف دا ورلڈ, دا ملٹری مغلز, دا ملٹری ایکسپرٹس دے آر ان شاک کہ پاکستان یہ کیسے کر سکتا ہے. لیکن آپ نے اپنی دھاک بٹھا لی, ملٹریلی آپ نے بٹھا لی, ڈپلومیٹیکلی آپ کے پاس دنیا ساری موجود ہے. آپ ایک ٹکا کے جواب دیں کرارا سا, اس کے بعد جو ہوتا ہے وہ صرف دیکھی جائے گی. میں نے جیسے پہلے بھی آپ نے کہا نا کہ بریک میں بڑی اچھی بات ہوتی ہے, ہم کھل کے بات کرتے, تو لیٹس ٹاک کھل کے. وارز آر ناٹ فوٹ کہ اگر مگر چونکہ چنانچہ اے کی کہے گا تو او کی کہے گا تو انج کی ہو جائے گا تو اونج کی ہو جائے گا. یو آر آلریڈی ان اے اسٹیٹ آف وار. ایک چھوٹی سی ایگزامپل, پی ایس ایل آپ کا افیکٹ ہو گیا, وائی؟ آئی پی ایل افیکٹ ہوا ہے کیا؟ نہیں, دبئی جا رہا ہے کیا آئی پی ایل؟ ہمارا والا بھی جا رہا ہے. دبئی کیا آئی پی ایل کیا دبئی جا رہا ہے؟ نہیں, دبئی جا رہا ہے. ہمارے والوں کے تو چانس نظر آ رہے ہیں. آئی پی ایل دبئی جا رہا ہے کیا؟ نہیں جا رہا نا. آپ کا پی ایس ایل افیکٹ ہو رہا ہے, بالکل ہو گیا. آپ کا T20 ورلڈ کپ کس نے آپ کو فائنینشیل لاس دیا؟ بھارت نے. کس نے آپ کی کرکٹ رکوائی 10 سال تک 15 سال تک؟ بھارت نے. کون آپ کے خلاف آپ کی کرکٹ کو تباہ و برباد کر؟ For how long do we have to take this bullying? ٹھیک, India is a bully. ٹھیک. They try to be the regional hegemony اور پاکستان اس گرام میں رکاوٹ ہے. یہ this is a very small example. آپ کہاں کہاں پاکستانیوں کے سینٹیمنٹ کو روکیں گے؟ آپ کا پی ایس ایل ایک ڈرون سے ان کے افیکٹ ہو کے رہ گیا. ان کے اسٹیڈیم کی بتیاں بھی بند ہو گئی ہیں, اور صرف اتفاق نہیں ہے کہ بند ہو گئی ہیں. جب تک آئی پی ایل بھی جب تک آئی پی ایل بھارت کی سرزمین سے نکلتا نہیں ہے, کم از کم مجھے سکون نہیں آئے گا. پی ایس ایل should not have left. پی ایس ایل should not have left پاکستان کی سرزمین. آپ کے سکون کے لیے تو ہم جنگ نہیں لڑ سکتے سر. یہ پوری قوم کا سینٹیمنٹ, یہ غریدہ کے سکون کی بات ہے, یہ پاکستان کے سکون کی بات ہے. پورے قوم کا جب ہم کہتے ہیں نا کہ ہم سر, آپ کی غیرت کی بات ہے. ہمارے جب ہم کہتے ہیں ہم سکون سے سوتے ہیں اور ہمارے سولجر بارڈر پہ ہمارے لیے جاگتے ہیں, تو وہ بھی یہی چاہتے ہیں. بے شک انڈیا میں مودی نے تو کیا اس لیے ہے کہ اس کی مقبولیت کھوئی گئی, وہ ڈرامہ کر رہا ہے. لیکن پاکستان کے اوپر کیا ہے؟ پاکستان, ہم کہتے ہیں نا ہمارا ڈیفنس بجٹ, بھائی ڈیفنس بجٹ اس لیے تھا جو ہم نے پرسوں رات دکھایا ان کو کہ ہمارے اوپر آپ انگلی نہیں اٹھا سکتے. ذرا سمیرہ اس کے اوپر آئیے گا کہ ہندوستان کی طرف سے سگنلنگ ہو رہی ہے, اور وہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کی طرف سے اگر رسپانس آیا تو ہم اس کا جواب دیں گے. اب یہ بڑی ایک دلچسپ بحث ہے کہ غریدہ نے ابھی کہا کہ کرارا جواب دیں, اس کے بعد جو ہوگا دیکھی جائے گی. تو پاکستان میں کیا ہے کہ کیا ہم اس کو واقعتاً نیوکلیئر اوور ہینگ کے نیچے کنٹین کر پائیں گے, یا یہ پھر اگلا سٹیپ اور اگلا سٹیپ؟ Sir, you are a student of international relations and ابھی I'll take refuge in behind the banner of student of diplomacy. لیکن یہاں پہ writing of the wall is لوگ چاہتے ہیں کہ جواب فوراً دیا جائے. But you know, I know, we have been part and parcel of a lot of important briefings ابھی lately, کل پرسوں سے جو چل رہی ہیں. یہاں پر جواب پہلے دن سے ہی تیار پڑا ہوا ہے. ایچ اینڈ ایوری تھنگ از سیٹلڈ ان دا کارنر, اور صرف انتظار کیوں ملٹری کو جواب کہا گیا کہ ٹھیک ہے اب اختیار آپ کا ہے. رائٹ ٹو ڈیفینس کا بھی جب ان کو اختیار دیا گیا تھا فوری طور پہ, اور یہ چیزیں ہوتی ہیں ہمیشہ ہیڈ آف دا گورنمنٹ اور ہیڈ آف دی ملٹری آرم فورسز, ان دونوں کی ہاٹ لائن میں ڈسکس ہوا ٹھیک ہے آپ رائٹ ٹو ڈیفینس دیں. رائٹ ٹو رسپونڈ کا بھی اجازت نامہ آرمی چیف کو آپ کو کیا خیال ہے مل گیا, تو وہ چاہ نہیں رہے ہوں گے کرنا. He knows his job better than anyone. That's why he's there. He has to. Air chief for that matter, naval chief for that matter. Exactly. ابھی جو آپ 2019 کی بھی بات کر رہے ہیں سر, with a lot of respect for you, لیکن وہ صرف ایک پے لوڈ کا انسیڈنٹ تھا جو کہ بالا کوٹ میں گرا کر بھاگ گئے. یہاں تو آپ کی قوم میں میجورٹی ایسی جس کو یہ بھی نہیں پتا کہ لائن آف کنٹرول کے اوپر 10 کلومیٹر ادھر اور 10 کلومیٹر ادھر کائنیٹک آپ کی باؤنڈری ہوتی ہے, آپ آ جا سکتے ہیں. لیکن سمیرہ اگر میں اسی پوائنٹ کو لے کے اور کمنٹ کرتا ہوا
کہ اس بات سے قطع نظر کہ پاکستان میں کتنے لوگوں کو کس چیز کا پتہ ہے یا نہیں ہے, جو پالیسی میکرز ہیں ان کو پتہ ہے کہ پے لوڈ ہے یا بوم ہے وائلیشن. تو اگر آپ نے چھوٹی وائلیشن کو نہیں پکڑا تو بڑی وائلیشن کے لیے دروازہ کھلتا ہے. واپس آئیے کہ ذرا اس کے اوپر نیکسٹ لیول اسٹریٹجی آپ پڑھاتے بھی رہے ہیں اور آپ نے خود اپلائی بھی کیا ہے, تو ایسکیلیٹری لیڈر کے اوپر جا رہے ہیں نا پھر ہم, نیوکلیئر ویپنز, بارڈر. ابھی میں ذرا انگیجمنٹ دیکھ رہا تھا, ڈپلائمنٹس ہمیں آج دکھائی گئی اور ہمیں نظر آ رہا تھا ڈپلائمنٹس کیا ہیں. یہ اتنا کنسنٹریٹڈ ماڈرن ایئر وارفیئر کے اندر آپ نے بھی دیکھا ہوگا, اس کی کوئی مثال نہیں ہے دنیا میں ماڈرن وارفیئر کے اندر کہ اتنا ایئر کرافٹ اتنے ایریے کے اندر دونوں سائڈ کی اوپر لگا ہوا. جی میں نے کہا نا 90 سے آنورڈ کہیں بھی دو ایئر فورسز کا ٹکراؤ نہیں ہوا, اس لیے دنیا شاکڈ ہے جیسے غریدہ کہہ رہی ہے. لیکن دیکھیے ڈینجرس نہیں ہے کیا, نیوکلیئر اسٹیٹ سے تو ہے, ڈینجرس ہے. لیکن آپ مجھے یہ بتائیے, جب 98 میں ہم نیوکلیئر ہوئے تو ہم نے تو یہ کہا کہ اب انڈر نیوکلیئر امبریلا جنگ کی گنجائش ختم ہوگی, ڈیٹررنس ہماری اسٹیبلش ہوگی, اب یہ نہیں مستی کرے گا. لیکن بھارت نے کیا کیا, انہوں نے یہ کنٹمپلیٹ کیا کہ جی انڈر نیوکلیئر تھریش ہولڈز ایک لمیٹڈ وار کی جو ہے نا اسپیس ہے, اس کے اوپر انہوں نے پرو ایکٹیو وارفیئر یا کولڈ سٹارٹ اسٹریٹجی بنائی. تو یہ تو وہ کنٹمپلیٹ کر رہے ہیں, وہ ڈسپلے کر رہے ہیں. ہم جو کر رہے ہیں, ہم تو ابھی بھی یہ مانتے ہیں کہ ہمیں نہیں لڑنا چاہیے, تو اس کی ذمہ داری ان پہ ہے. ہم تو صرف جواب دینے کی بات کر رہے ہیں. لیکن صرف جواب نہیں ہوگا, یہ تو میں آپ سے جاننا چاہ رہا ہوں اسٹریٹجی وائز آپ کو کیا لگتا ہے اگلا سٹیپ کیا ہوگا, ذرا اس کے اوپر روشنی ڈالیے نا. اگلا سٹیپ یہ ہے کہ ہمیں ان کے وہ ٹارگٹس, آئی ایم شیور کہ یہ چیزیں آلریڈی بنی ہوتی ہیں, پلانز بنے ہوتے ہیں, اور اس کے مطابق War policies we cannot discuss and we cannot discuss. in a program میں بریفلی یہ کہوں گا کہ ہمیں وہ ٹارگٹ لینے چاہیے جس کا ایفیکٹ اور امپیکٹ بھارت کو ایک لمبے عرصے تک امپیکٹ فیل ہو, ان کو فیل ہو, جس میں وہ پنجابی میں کہتے ہیں کہ ٹھنڈ پہ جانی چاہیے تھی. ٹھنڈ پہ گی. ایک شارٹ سا آنسر, it has to be quid pro quo. It has to be quid pro quo. دیکھیں آپ کچھ بھی کہانی بنائے نا کہ یہ اسٹریٹجی ہے, یہاں وہ ہیں بارڈر کا, عام آدمی اس سے کوئی تعلق نہیں رکھتا. جب آپ جنگ میں ہیں تو آپ کو جواب دینا ہے اور لوگوں کو جواب دینا ہے. یہاں پہ آپ یہ نہیں کہہ سکتے فوج فیصلہ کر چکی ہے اور ہمیں پتہ ہے اور آرمی چیف کو بڑا پتہ ہے اور ایئر چیف کو. یہ جو لاکڈ چیزیں ہوتی ہیں نا, یہ زمانہ امن میں ہوتی ہیں. آپ کی انفارمیشن ہوتی ہے تو آپ بچتے ہیں. یہ نہیں ہے کہ آج ہم ان کی انفارمیشن لے کے آئیں گے. آج ہمارے پاس وہ آئے گا جیسے ہم کہتے ہیں کہ ہم نے اپنا ایئر ڈیفنس کس طرح شفٹ کرنا ہے. جب ہم رات 3:30 بجے ایک کو لگاتے ہیں اور ہمیں نشان ملتا ہے تو اس کے بعد ہم نے وہ حرکت نہیں کی نا, پھر ہم سارا دن نیچے آنے کا انتظار کرتے رہے. نہ ہم نے میزائل خرچ کیے, نہ ہم نے پیسے خرچ کیے. ٹھیک ہے, لوگوں میں ایک تھوڑی دیر کا پینک آیا, لوگوں کو پتہ چل گیا کہ یہ ہم مرضی سے کر رہے ہیں, ہمیں اپنا فائدہ دیکھنا ہے, ان کے سسٹم کو لاک کر کے جیم کر کے ہمیں اپنا کیسے کرانا ہے. لیکن آج ایشو یہ ہے کہ کوئی بندہ آپ کی یہ جو ہوتی ہے نا وہ مدلل گفتگو دلیل کے ساتھ ہمارے یہ مسائل ہیں, یہ آج ہے نا پرائم منسٹر یا آرمی چیف یہ بات بتانے کے لیے کہ جناب بڑی ضروری ہے یہ بات, وہ کوئی نہیں سننے کے لیے تیار. وہ کہتے ہیں جناب انٹرنیشنل بارڈر ہوا ہے. اگر میری مجھے آرگومنٹ کرنے دینا, صرف اس وجہ سے کوئی سننے کو تیار نہیں ہے, اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو آرمی چیف بات کرے گا وہ ضروری نہیں ہوگی. پالیسی میکر کا مقصد جو ہے وہ عوام اس کو نہیں لیڈ کرتے نا, وہ عوام کو لیڈ کرتے ہیں. میں اسی طرف آ رہا تھا. میں نے کیوں بات کہی ہے, میں جذبات کی بات کیوں کر رہا ہوں, اس لیے کر رہا ہوں کہ یہ ہم نے سکھایا لوگوں کو کہ آپ کی فوج, آپ اطمینان رکھیں, جب دشمن آئے گا اس کو ہم جواب دیں گے. یہ اس طرح نہیں میں کہہ رہا کہ بس ٹھیک ہے جذباتی ہو جائیں. ہمارا ڈی جی آئی ایس پی آر کب کہتا ہے, بار بار کہہ رہے ہیں نا آ کے کہ آپ ویٹ کریں, جگہ اور وقت کا فیصلہ ہم کریں گے. کسی نے کہا ہے کہ ہمیں جو دلی کو مار دو, کوئی نہیں کہتا. وہ جگہ ہے and we have full confidence in our armed forces. لیکن sir, your entire military might is built against whom? دیکھیں جب ہم کہہ رہے تھے ایئر your entire military might and training is built against whom? جب ہم کہہ رہے تھے کہ آپ کو JNC بالکل نئی چیز دکھائے, جو غریدہ کہہ رہی ہیں ہمارا جو نہیں دیکھیے جوائنٹ سٹاف ڈائریکٹو جو ہے پاکستان کی تینوں فورسز کے لیے, اس میں ہمارا ڈکلیئرڈ اینیمی انڈیا ہے. ہمیں اس کے لیے پاکستان کے عوام کے ٹیکس Sir, your entire military might is built on this one thing. I beg to disagree. Conventional warfare سے unconventional warfare پر ہم 2001 کے بعد آ چکے ہیں. So I cannot say that we are just trying to make our students study this
India is only enemy. I think 2008 वन से हम किसको, लेकिन अगर आप सेंटर ऑफ ग्रेविटी देखें तो बहुत सारे ये जो there are two सब adversaries कन्वेंशनल now. वॉरफेयर के अंदर, लेकिन आई एग्री विद, आई टेक योर पॉइंट। अतले साहब, मैं सिर्फ एक चीज राना साहब की बात से मुझे सिर्फ याद आई, राना साहब ने अभी स्टार्ट में कमेंट के मेरा पॉइंट प्रूव कर दिया। वी हैड दीज लॉइटरिंग म्यूनिशंस इन द एयर। अभी भी आई कैन से वेरी सेफली कि हमें अभी भी नहीं पता होगा कि व्हाट सॉर्ट ऑफ नंबर ऑफ दीज लॉइटरिंग म्यूनिशंस आर हवरिंग इन द ग्राउंड, सॉरी इन द एयर। क्यों? जब हमने उनको डिटेक्ट नहीं कर सके, हमने अपने करोड़ों का एयर डिफेंस सिस्टम उसके खिलाफ लॉन्च नहीं करना चाहा, पैसे नहीं जाया करना चाहे, वी वेटेड फॉर देम टू कम एंड अप्रोच अस। ये मैं बात कर रही हूँ कि वंस इफ यू आर अनएबल टू रीड द ग्राउंड, लेकिन हमने उसको अवॉइड नहीं किया ना, हमने उसको हेड ऑन तो किया ना। देयर इज अ कैविएट इन ऑल दिस डिबेट, देयर इज अ सारे कैविएट। ऑप्शंस वो हेड ऑन भी किया और नतीजे को हमने बताया कि हम क्यों गिरने दिए। मुझे हम ये नहीं थे कि हमें पता नहीं चल रहा था। जैसे सॉरी एक फिक्रा अलीमा खान साहिबा ने कह दिया कि पिंडी तक ड्रोन आ गए। ओ भाई जरा चेक तो कर लो कि कैसे आ रहे हैं। राणा साहब, संजीदा आप तो अभिनंदन को बैठने नहीं दे दे आर रहे। इररिलेवेंट। संजीदा गुफ्तगू में दे आर इररिलेवेंट। सेंटीमेंट्स को उनकी तो खराब सिर्फ करने बात वालों ही को नहीं कर रहे, उनको तो जा सबके पास मैं देखिए तले साहब, मैं पाकिस्तान एयर डिफेंस का जो मेरी आखिरी असाइनमेंट थी, मैं एयर ऑफिसर कमांडिंग था, यानी चीफ ऑफ एयर स्टाफ गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से एयर डिफेंस कमांडर डिक्लेयर्ड हैं। पीस टाइम में वो जिम्मेदारी उस ऑफिस को है जिसको मैं हेड करता रहा, ठीक, 3 साल तक। तो बहुत बात हो रही है एयर डिफेंस रिस्पांस की आया है। देखिए एयर डिफेंस के एलिमेंट्स हैं, हमने डिटेक्ट किया, हमने शूट भी किया। यही बात अब ये हमारी चॉइस है कि हमने सॉफ्ट किल की, हार्ड किल की, वो क्योंकि देखिए इस स्टेज पे उस पूरी कार्रवाई के 2 और मकासद भी हैं जिसको हम जो इस वक्त डिबेट नहीं कर रहे। पहला मसला ये है कि उन्होंने आपकी आवाम को डीमोरलाइज करना है कि जी हमारी रीच है कि आपकी वल्नरेबिलिटी इतनी है कि हम जी राजा बाजार भी पहुंच जाएंगे, फूड स्ट्रीट भी जा रहे हैं, स्टेडियम भी जा रहे हैं, गोटकी बदीन जो है ना, इसीलिए मैंने वो जिक्र किया। ठीक है, एक तो ये चीज है कि अवाम जो है ना, क्योंकि जो बेसिक 10 प्रिंसिपल वो बहुत हमें पढ़ाए जाते हैं और हम अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं, उसमें अवाम का मोरल is the Sir, with your permission, Tala Saab, there is a caveat, there is a predicament. इस सब डिबेट के साथ there was a phone call to Prime Minister Shehbaz Sharif today by the USA. पाकिस्तान की एक हिस्ट्री है अमेरिकी फोन कॉल्स की, हमारे हुक्मरानों को आने की. So now, if you don't want to lose the political ground like Modi lost, जब उसके 5 तैयारे गिरे, जिस तरह से हमने गिराए, he lost the political ground. अभी अगर आप कोई जवाब नहीं लेंगे, कोई स्टैंड नहीं लेंगे, द गवर्नमेंट विल लूज द पॉलिटिकल ग्राउंड जो ऑलरेडी क्वेश्चनेबल थी इन द पीस टाइम। वो ऑलरेडी परेशान है शहबाज साहब, आपने बात करके और परेशानी में इजाफा कर दिया। आपका हिस्ट्री ऑफ फोन कॉल्स, अमेरिकन फोन कॉल्स, ये है कि वो जो हमने थोड़ा बहुत रोका ना, लेकिन इसके बाद अगर आप कुछ नहीं करते तो लोग यही समझेंगे कि आपने अमेरिकी फोन कॉल के बाद नहीं किया। देखें पूरा प्रोपेगेंडा इस वक्त ये हो रहा है कि जी तो मोदी और नवाज शरीफ तो एक हैं और अमेरिका के साथ चल रहे हैं। अब आपको पता चला आज आपको पता चला है कि नवाज शरीफ कहां थे। अच्छा देखिए, जब जवाब मिलेगा तब भी पता चला। मैं नेशनल सिक्योरिटी के साहब को मैंने एक चीज एस्टैब्लिश करनी थी। अब आपको पता चला कि स्ट्रेटजी जो है ना वो इमोशन के अंदर फंसी हुई है। नहीं आप बोलना चाह रहे हैं, इमोशन बोलने नहीं दे रहा आपको। नहीं सर, आपने कहा भी यही हो रहा है। आपने कहा पॉलिसी, ये पॉलिसी मेकिंग स्टेज नहीं है, पॉलिसी बनी हुई है, एग्जीक्यूट ये स्ट्रेटजी बनी हुई है, उसकी सिर्फ उसको इनिशिएट करना है। तो आप अपने ऑफिस के हवाले से दूसरी बात करना चाह रहे थे। आपने कहा कि दूसरी बात ये है कि ये जो है ना, इसका मकसद दूसरा ये है कि एक टर्म होती है इलेक्ट्रॉनिक ऑर्डर ऑफ बैटल, कि आप बिल्कुल फाइन ट्यून करना चाहते हैं, ये देख के ट्रिगर करके कि कहां पे हमें क्या सिग्नेचर मिल रहे हैं, कहां पे आपके लो मैट लगे हुए हैं, कहां पे आपके हाई मैट। हमने वो जवाब नहीं दिया क्योंकि हम उस वहां जज्बाती नहीं थे, वहां में पता है कि हमने किस स्टेज पे क्या करना है। तो अगर आप इजाजत दें, ख्वाजा साहब लाइन पे हैं, ख्वाजा आसिफ हमारे डिफेंस मिनिस्टर। ख्वाजा साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ख्वाजा साहब, बड़े यहाँ पे जज्बाती किस्म की पॉलिसी वाली भी गुफ्तगू हो रही है और आपके मैं टिकट्स भी देख रहा था, बयान पर मबनी है जिसमें आपने फरमाया कि अब ऑप्शन नहीं है और हमें जवाब हर हाल में देना ही है। तो मैं सिर्फ आपसे ये जानना चाह रहा था कि क्या आज के वाक़यात ने हमारी जो डिक्लेयर्ड पॉलिसी थी कि हमने जवाब देना है उसको मजीद रीइंफोर्स कर दिया है, या ये कोई नई कंपल्शन क्रिएट हुई है हमारे लिए कि पहले शायद हम सोच रहे थे कि ना दे, लेकिन आज के वाक़यात ने हमें मजबूर नहीं, मेरा ख्याल है ये रीइंफोर्स किया। ये ऑप्शन हर वक्त हमारे ज़हन पे थी ये, लेकिन ये वाक़या जो 2-3 दिन से बार बार जो हो रहे हैं या एस्केलेशन जो है इंडिया कर रहा है,
उसने हमें जो है इसको री इन्फोर्स किया है इस चीज को. इट्स नॉट समथिंग विच वी हैव थॉट टुडे, या जो आज हमने कंटेम्पलेट की है. ये ऑप्शन जो है पहले दिन से, जब से ये पेंशन स्टार्ट हुई है, ये इट वाज ऑन द टेबल. लेकिन हम चाहते थे किसी ना किसी तरह जो है ये एस्केलेशन ना हो. लेकिन मौजूदा सूरत हाल में मेरा ख्याल है इट इज इमिनेंट. यू नो, वी don't have much of choice available to us. इमिनेंट से तो इमिनेंट की तशरीह क्या होगी? 12 घंटे, 24 घंटे? मेरा तो ख्याल है कि घंटे ही होंगे, जो है ये दिनों की बात नहीं. अच्छा जरा मैं एक क्यों मेरे ज़हन च गलत किस्म दी गल्लां लेके आंदे नहीं, ऐसे जानते हैं कि थोड़ी देर में सही गल्लां रहे. ये गरीदा ने भी आपके साथ हम जब राब्ता कर रहे थे उससे पहले खतरे का या खदशे का इजहार किया कि जो अमेरिका की तरफ से फ़ोन कॉल आ रही है वज़ीर आज़म को, कहीं उनका जो मुसम्मम इरादा है जो उन्होंने शबाना रोज़ मेहनत के बाद पैदा किया है वो कहीं मुतज़लज़ल ना हो जाए. तो मैं जरा उसके ऊपर चाह रहा था कि अगर आप इनको रीअश्योर कर दें तो. मुझे इस पोस्ट दिस टेलीफोन कॉल जो है मेरी कोई इंफॉर्मेशन मेरे पास नहीं है. अच्छा, लेकिन प्री टेलीफोन कॉल जो है उसमें यही सिचुएशन थी कि ये हमने पेशेंस शो की है, हमने कोशिश की है डी एस्केलेट जो है वो हो जाए सिचुएशन. लेकिन जो है वो नॉच एवरी डे जो है एक दो जो है बढ़ती जा रही है. तो मेरा ख्याल है कि अब जो है कोई शो डाउन हो जाए तो बेहतर है. बिल्कुल. आखिर में जी सुमेरा साहब हमारे रिपोर्टर हैं, आपसे कुछ पूछना चाह रहे हैं. जी गो अहेड. अस्सलाम वालेकुम ख्वाजा साहब, मैं शायद आपको पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस याद होगी जब आप डार साहब और वज़ीर इत्तलात मौजूद थे पाकिस्तान टेलीविज़न के हेडक्वार्टर्स में. मेरा सवाल आपसे उस दिन भी यही था कि हमारी ऑपरेशनल प्रिपेयर्डनेस जो है वो अभी रेडी है या हम उसमें कुछ थोड़ा सा मजीद सोच विचार में जाएंगे. तो यू रिस्पॉन्डेड एंड द DPM रिस्पॉन्डेड के वी आर ऑल सेट टू रिस्पॉन्ड और कोई भी अग्रेशन जो है वो उसको संभालने के लिए हम तैयार हैं. तो जो पाकिस्तानी मैसेज का सवाल है वो ये कि वाई वी आर टेकिंग अ लॉट ऑफ टाइम, इस पर आप क्या बताएंगे? देखें, आपका उस दिन भी सवाल जो था मैंने जवाब दिया था. आज देखें, वी लिव इन वेरी डेंजरस नेबरहुड और इस नेबरहुड में रहने के लिए हर वक्त तैयार रहना पड़ता है. यहाँ पे वी कैनॉट लोअर आवर गार्ड्स. खुदा न खासा कोई ऐसी बात हो एंड वी आर टेकन बाय सरप्राइज, इट इज नॉट पॉसिबल. उसके जो फाइनल नोक पलक होती है, दुरुस्त करनी होती है, वो कर लेते हैं. वो इट टेक्स यू नो वेरी शॉर्ट टाइम. लेकिन ये किसी स्टेज पे भी प्रिपेयर्डनेस जो थी उसमें कोई कमी नहीं थी, आज भी नहीं है. एंड वी आर एब्सोल्युटली रेडी कि ये जो 4-5 दिन 6 दिन से जो आप पे इल्जामात लग रहे हैं, अभी भी एज वी स्पीक ये कहा जा रहा है कि जी पाकिस्तान ने जम्मू पे अटैक कर दिया हुआ. अभी देखें, हम अटैक करेंगे, दुनिया सारी को पता लगेगा कि हमने अटैक किया. हम चोरों की तरह या कोई वारदात खुद करवा के पुलवामा में जो है उसका मलबा किसी और पे नहीं डालेंगे. हमने जो कुछ करना है खुद करना है और सारी दुनिया देखेगी. ये जहाजों के बारे में कहता कलाम, ये जहाजों के बारे में कह रहे हैं कि जहाज गिरा दिया, ये हम बहुत सी खबरें को लाना नहीं चाह रहे थे, लेकिन हमारी तरफ से कोई रिस्पांस नहीं गया अभी. नहीं, देखिए, मुझसे पूछा गया है, कोई जहाज नहीं गिराया गया. हमारी एयरफोर्स जो है वो पिछले 1 दिन में या 1.5 दिन में जो है वो उस एंगेज नहीं हुई. जो उस रात के बाद जो है कम से कम मेरे नॉलेज में इस किस्म की कोई नहीं है कि हमारी कोई एंगेजमेंट हुई है. अगर एंगेजमेंट होती तो फिर पता लगता. अब क्योंकि वो इतने व्यस्त हो चुके हैं पिछले 3 दिनों में, वो राफेल वाले और जो मिग और साथ कोई एक और भी जहाज उनका SU पता नहीं क्या है, वो अब पहले वो कहते है ही नहीं है. फिर कंफर्मेशन जो है वो इंटरनेशनल आनी शुरू हो गई कि जी वाकई एक जहाज है. फिर वो जो सीटें बनाते हैं, इजेक्ट करते हैं, उन्होंने कहा जी 4 जो है सीटें हमें जो है वो सैटेलाइट से कनेक्शन होता है उस कंपनी के साथ कि जी हमारी सीट को इजेक्ट हुई है. वो 4 सीटें जो है ना वो कहते हैं जी इजेक्ट हुई है, कंपनी कह रही है. दिस इज ऑन देयर वेबसाइट. तो अब 4 बंदे एको जहाज टेंशन बैठे होंगे, कोई रिक्शा तो नहीं सुनाएगा.
ख्वाजा बहुत शुक्रिया। वैसे बेइज्जती तो उनकी बहुत हुई है, लेकिन जिस तरह आपने उनकी बेइज्जती का लफ्ज़ इस्तेमाल किया ना, लगता है कि वाकईतन बहुत ज्यादा उनकी हुई है। आपने कहा बेइज्जत बहुत हुए ने, बिल्कुल सही है। आराम से बात कर रहे थे, जिस टाइम ਅਸੀਂ जवाब देंगे ना लग पता जाएगा। अच्छा, अब जरा हम इसको समेटना भी चाहते हैं, तो हमारी तवक्को ये है कि जब हम जवाब दें, आपने मिलिट्री टारगेट्स का जिक्र किया और ज़ाहिर हम थ्योरेटिकल डिबेट कर रहे हैं ना, हमारे पास बैटल प्लान मौजूद है, होना भी नहीं अगर हो भी, जो कि नहीं है, तो ज़ाहिर हम डिस्कस नहीं कर सकते, और ये भी इवॉल्विंग सिचुएशन के अंदर टारगेट्स कैन आल्सो चेंज। अच्छा, उनकी जो एयरफोर्स की कैपेबिलिटी है, आपको वो कहते हैं नो दाई एनिमी, तो आप जिन ऑफिस के अंदर रहे हैं, तो हमारी अंडरस्टैंडिंग एम्बिग्विटी तो उसमें कोई नहीं है कि उनकी कैपेबिलिटी क्या है, मुकम्मल मालूमात हमारे पास मौजूद होती हैं। जी अल्हम्दुलिल्लाह, उनकी देखिए यही तो थ्रेट परसेप्शन होती है ना, कि हम, और उसमें जो बेसिक उसका कार्डिनल है, गिव बेस्ट ऑप्शन टू योर एनिमी, उसमें कोई बढ़के नहीं होती, उसमें कोई अलूजन्स नहीं होती। ठीक, एनिमी को बेस्ट ऑप्शन दे के हम अपना रिस्पांस बनाते हैं। रिस्पांस जब बन जाता है, उसमें अगर हमारे पास कोई हार्डवेयर डेफिशिएंसीज हो, वो हम गैप फिल करते हैं। एज ऑफ नाउ अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान एयरफोर्स एयर डिफेंस डोमेन में और स्ट्राइक या ऑफेंसिव कैपेबिलिटी में हमें उन पे एज हासिल है। हम लॉन्गर रेंजेस पे उनके एयर टारगेट्स और उनके ग्राउंड टारगेट्स को बिल्कुल एक हाईएस्ट एक्यूरेसी के साथ और हाईएस्ट डिग्री ऑफ एश्योरेंस के साथ हम एंगेज कर सकते हैं। ये मैं बिल्कुल एक, आप ये समझिए कि दिस स्टेटमेंट इज ऑन बिहाफ ऑफ द एयरफोर्स, क्योंकि यही हमारा ब्रेड एंड बटर है। देखिए, आज से कुछ साल पहले तक हम यही काम कर रहे थे, और अब जो लोग हैं वो हमसे बेहतर ये काम कर रहे हैं और नेक्स्ट लेवल के ऊपर गए हैं। टू लीव इट देयर। आप अल्हम्दुलिल्लाह सबका बहुत शुक्रिया। आप कुछ कोई लास्ट मोटिवेशनल कोई जुमला इस किस्म का? मैं सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ कि जो लोग नवाज शरीफ को ढूंढ रहे थे, ये मैं बार बार इसलिए कह रहा हूँ कि उसने जब 98 में एटमी धमाके किए, उसने जब JF थंडर बना के दिया, इस पाकिस्तान को पहली दफ़ा ला के दिया, जिस पे आज हम एयरफोर्स पे नाज करते हैं, आप उसकी मौजूदगी में बिल्कुल इस किस्म की कोई कहानी ना सोचें कि हम किसी से गिदड़ कुट खा के बैठ जाएं। सर इसी से मुझे कल अब वो वक्त नहीं रह गया, आप न्यूज़ वाले जो आपको पता ना, फिर आप भी कभी पर नहीं लेंगे। गिदड़ और शेर का याद आ गया कल। नहीं, वो बहुत लंबा किस्सा है गिदड़ और शेर का, उसको बता देंगे। आई हैव टू लीव इट हियर, आई एम सॉरी, आई हैव टू ड्रॉप द गिलोटिन हियर। आप सबका बहुत शुक्रिया। हमारी ट्रांसमिशन जारी है। जी नाज़रीन, आपको हम रेड लाइन की खुसूसी ट्रांसमिशन में खुश आमदीद कहते हैं। लाइव शो है हमारा, और जो जंगी माहौल बना हुआ है, हमने उस पर बात करनी है। पाकिस्तान की तरफ से जितनी भी इंडिकेशंस आ रही हैं, बयानात की हद तक, तैयारियों की हद तक, तो बड़ा वाज़े है कि पाकिस्तान ने अपनी पोजीशन अब एक ले ली है। उस पोजीशन के अंदर हिंदुस्तान को मुकम्मल तौर पर जवाब देना बाकी है। हिंदुस्तान ने अपना मुकदमा आज मज़ीद ख़राब किया। ये नहीं कि उसके पास बड़ा कोई तगड़ा मुकदमा था, लेकिन जो भी उसका मुकदमा था उसने उसको ख़राब किया। पाकिस्तान के अंदर 28 से 29 ड्रोन्स भेजे। ये इसराइली साख्त के ड्रोन्स हैं। इनमें से चंद एक ड्रोन्स को जब पाकिस्तान के जो लॉन्ग टर्म एयर डिफेंस सिस्टम्स हैं उन्होंने इंगेज किया, तो पता चला कि इन ड्रोन्स का मकसद ये है कि इनके ज़रिए लोकेशंस आइडेंटिफाई की जाएं कि पाकिस्तान के ये एसेट्स कहाँ पर डिप्लॉयड हैं। तो उसके बाद पाकिस्तान ने इनको सॉफ्ट किल के ज़रिए 29 के 29 गिरा दिए। इसके अंदर लोगों का नुकसान भी हुआ है, खौफ और हरास फैलाने की भी कोशिश की गई है, और इसके साथ साथ फिर हिंदुस्तान अभी तक ब्लैकआउट खेल रहा है। कभी एक शहर की बत्ती बंद कर देता है, कभी दूसरे शहर की बत्ती बंद कर देता है, कभी ये कहता है कि जम्मू पे पाकिस्तान ने अटैक किया मिसाइल्स के ज़रिए, हमने इंटरसेप्ट कर लिया, कभी F-16 गिरा देता है। पाकिस्तान के जो सिक्योरिटी ज़राए हैं उनकी तरफ से वाज़े अंदाज से कहा गया कि हमारा रिस्पांस अभी तक जो लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहे हैं अनफोल्ड नहीं हुआ। जब वो अनफोल्ड होगा तो फिर सारी दुनिया देखेगी। ये वो अल्फाज हैं जो आज DGI स्पेयर ने अपनी ब्रीफिंग में भी अदा किए। सफारतकारी बराबर में तेज़ चल रही है। अमेरिका के सेक्रेटरी खारजा की तरफ से दोनों साइड से राब्ते हुए हैं, हिंदुस्तान के सेक्रेटरी खारजा और पाकिस्तान के वज़ीर आज़म से। कल एक बड़ा अहम दौरा है। सऊदी वज़ीर मुमलिकत बराए खारजा अमूर दिल्ली से होते हुए पाकिस्तान पहुँचेंगे। सऊदीज़ के साथ पाकिस्तान के बड़े अहम ताल्लुकात हैं। मकसद यही है कि इस ख़ित्ते को आग जो भड़क रही है
اس میں موقع جائے اور آگ پاکستان نے نہیں بھڑکائی، لیکن سفارتکاری کا زور اب پاکستان کے رد عمل کے حوالے سے پاکستان پر ہے۔ اس تمام معاملے کا احاطہ کریں گے آج کی ٹرانسمیشن میں۔ ہمارے پاس غریدہ فاروقی صاحبہ موجود ہیں، صحافی تجزیہ کار، ان کا بہت شکریہ۔ ان کے برابر میں سمیرہ خان موجود ہے، نمائندہ خصوصی سما ٹی وی۔ سمیرہ ہیز بن رننگ اپ اینڈ ڈاؤن، کبھی فورن آفس میں، کبھی لاہور میں، کبھی فیلڈ سے، تو ان کے پاس بھرپور خبریں ہیں۔ ہمارے پاس ایئر وائس مارشل ریٹائرڈ اعجاز محمود ہیں جو دفاعی تجزیہ کار ہیں، اور ہم اور آپ سب کو پتہ ہے یہ جنگ اب ایئر فورس کی ہی ہے جو رسپانس آ رہا ہے، تو آپ کے پاس بہتر تجزیے کی سہولت مہیا ہے، ہم اس کو اسے استفادہ کریں گے۔ آپ کو شکریہ۔ اور عامر الیاس رانا صاحب تمام اسپیکٹرم کے اوپر نظر رکھے ہوئے ہیں، میڈیا کا رول کیا ہے؟ آج میڈیا نے جب ہندوستان کی طرف سے ڈرونز آنے شروع ہوئے تو دھڑا دھڑ خبریں چلنے لگ گئیں، جس سے خوف و ہراس پھیل گیا کہ ہم بہتر معلومات کے ذریعے لوگوں کے اندر جو ہے جو خوف و ہراس اس کو کم کر سکتے ہیں۔ تو عامر آپ کا بھی شکریہ۔ کوئکلی اسٹارٹنگ فرام یو سمیرہ، غریدہ آپ کے پاس آؤں گا، کوئک فائر۔ کل بڑا اہم دن ہے، سعودیز یہاں پر موجود ہوں گے اور سعودیز کے ساتھ ہمارے تعلقات بڑے گہرے ہیں۔ آپ کا ریڈ آؤٹ کیا ہے کہ اسلام آباد میں فورن آفس میں کیا بات ہو رہی ہے کہ کس حد تک وہ ہمیں کنونس کر پائیں گے؟ کیونکہ مینڈیٹ تو ان کا یہی ہے کہ مزید آگ نہ بھڑکے۔ سر یو آر ایبسولوٹلی رائٹ۔ عادل الجبیر جو ہیں وہ فار ایئرز ہی از اے ریناؤنڈ اینڈ اے سیزنڈ ڈپلومیٹ. Whenever it comes to a table diplomacy, he is the person in the Saudi corridors to talk about. عادل الجبیر اگر پاکستان آ رہے ہیں اور اس طرح آ رہے ہیں اینڈ فرام انڈیا آ رہے ہیں تو اٹ مینس سم تھنگ بگ از ہیپننگ. مگر پاکستان کا I don't know how to go about it. مجھے ابھی ایز اے صحافی اپنے جذبات کا اظہار نہیں کرنا، لیکن اس وقت جو ایک صحافی کی ریڈنگ ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان اپنا جواب انٹرنیشنل کمیونٹی کو جمع کروا چکا ہے کہ اب تک ہم صرف مدر لینڈ کو ڈیفینڈ کر رہے تھے، ہمارا رائٹ ٹو رسپونڈ ابھی رہتا ہے اور وہ ہم نے کرنا ہے، کیونکہ وی آر رائٹنگ آن دا وال ایز ویل کہ ہمارے لوگ اس ابھی رسپونڈ کا انتظار کریں کہ وہ ہم کب کرتے ہیں. تو ابھی ڈپلومیٹک کوارٹرز میں فرام پنڈی ٹو اسلام آباد رائٹ ناؤ دیر از اے ہاٹ لائن بٹوین دفتر خارجہ. یہ پتھر پر لکیر ہے، ہمارا رسپانس پتھر پر لکیر ہے، جو دنیا نے کرنا ہے ہمارے دوستوں سمیت وہ کرتا رہے گا. Would you agree with that کہ ایسا ہی ہوگا یا آپ کے خیال میں بیچ کا کوئی رستہ نکل سکتا ہے؟ نہیں، ڈیفنس منسٹر نے تو آج کہہ دیا ہے کہ یہ تنازعہ بند گلی میں جا رہا ہے. کے ایس اے کس حد تک انٹروین کر سکے گا، وی ہیو ٹو سی. اور کے ایس اے سے زیادہ پاور ایکسرسائز کرتا ہے اوور دا انڈیا، دیٹ از یو ایس اے. اور یو ایس اے پہلے دن سے انڈیا کو پریشرائز کر رہا ہے، انڈیا کو میسیجنگ کر رہا ہے کہ آپ مت بڑھیے گا آگے. لیکن اگر اس کی بھی نہیں سنی انڈیا نے تو کس حد تک سعودی عرب کی سن سکے گا؟ نمبر 1. نمبر 2، جو پہلی رات کو جو اٹیک کیا انڈیا نے، دیٹ واز ٹو سیٹسفائی دیئر لوکل پولیٹیکل بیس. نمبر 1، اس میں جو انڈیا کو ناکامی ہوئی، بڑی بھرپور ناکامی ہوئی. It's not a small feat, it's not a small combat feat کہ آپ 3 رافیل طیارے ان کے مار کے گرا دیں. اس سے جو ان کی فضائی برتری تھی، جو ان کی کمبیٹ ڈومیننس تھی، بلکہ جو فل اسپیکٹرم ڈومیننس تھی، سو کالڈ نام نہاد، وہ شیٹر ہوئی، بری طرح شیٹر ہوئی، اور پاکستان نے اس کو منوا لیا. اس وقت تو دیر از لیٹ دا ڈسٹ ڈائی، ڈسٹ آف دس وار ڈائی، لیٹ دس وارفیئر کا فینفیئر ڈائی، اور پھر ہمیں پتا چلے گا کہ ہم نے جو رافیل مار گرائے ہیں یہ کتنا بڑا کمبیٹ فیٹ ہے، بیکاز دا ویسٹ از شاکڈ. اچھا، یہ قطع کلامی اس تمام بیانیے میں بڑی دلچسپ بات یہ کہ آپ نے سالسی والسی کو تو بالکل سالسا بنا دیا، آپ نے اس کو لفٹ ہی نہیں کرائی، تو آپ نے بالکل کمبیٹ والی لائن. تو آپ کے خیال میں یہی ٹون ہے اور ادھر ہی جانا ہے، سالسی برابر میں چلتی رہے گی؟ سالسی میرا نہیں خیال کہ اس وقت ان پلیس آ سکتی ہے، کیونکہ پاکستان اس کے لیے ریڈی ہے. اٹ ٹیکس 2 to tango. انڈیا کی ریڈینس نظر نہیں آتی. آج بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ جو آپریشن سندور ابھی ہمارا، جو کہ سندور تو رہا نہیں، وہ کمپلیٹ نہیں ہوا. سو آئی ایم ناٹ، وہ تندور سے بھی کچھ اور بڑی صورتحال اس کی بن گئی ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ دس از ناٹ یٹ ڈن، وی آر ناٹ یٹ ڈن. سو آئی وڈ ناٹ بلیو انڈیا، آئی وڈ بلیو مائی اسٹیٹ اینڈ دا پریپیئرڈنس آف مائی اسٹیٹ. تو اچھا، آپ نے تیاری کی بات کی، تو اعجاز صاحب اب تیاری کو صرف بنیاد بنا کے جب آپ دیکھتے ہیں تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ ہم کس نقطے پہ کھڑے ہیں؟ یہاں سے آپ وڈرا کر سکتے ہیں، سٹیپ بیک کر سکتے ہیں، کوئی پیس فارمولا کام کر سکتا ہے، یا جہاں پر معاملات چلے گئے ہیں آج کے واقعات کے پیش نظر، ڈرون کا معاملہ آپ دیکھ لیجئے، جو فاگ اینڈ ہیز آف وار انڈیا نے کریٹ کی اس کو دیکھ لیجئے، جو سٹیٹمنٹ ساری ان کو دیکھ لیجئے، آپ کو لگتا ہے کہ یہ اب کلیئر اینڈ نیرو اسٹیٹ ادھر ہی جا رہے ہیں؟ دیکھیے جی، کیا کر سکتے ہیں، یہ تو بہت ساری طلع صاحب آپشنز ہیں. ایز اے ویٹرن میرا خیال ہے، میرا یہ رائٹ ہے کہ میں یہ کہوں کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے. ٹھیک، تو ہمیں کرنا یہ چاہیے جو ہماری قوم اس وقت جس کے لیے تیار ہے، اور وہ ہمیں اپنا رسپانس دینا چاہیے.
डिप्लोमेसी वी विल गिव पीस ए चांस, क्योंकि अल्टीमेटली देखिए हम विद इन दी न्यूक्लियर थ्रेशोल्ड हम ये सारा कुछ कर रहे हैं ना, और हमने तो इनिशिएट नहीं किया। ठीक। तो ये कहाँ तक जाता है उसकी जिम्मेदारी हमारे ऊपर नहीं है, ये उनके ऊपर जाएगी जिन्होंने इसको इनिशिएट किया। हम यूएन चार्टर के आर्टिकल 51 हमें क्लियर मैंडेट देता है कि हम अपने सेल्फ डिफेंस में वो करें जिसके हम केपेबल है, और अल्हम्दुलिल्लाह अगर हम केपेबल है तो व्हाट वी नीड इज जस्ट an intent and resolve to do that, and let's do it before, you know, diplomacy जो है ना वो that takes ग्लोबल डिप्लोमेसी को उसका वजन है, इसमें हम इनकार नहीं कर। लेकिन मैं अगर क्विकली आमिर के पास जाने से पहले if I may add a small comment to what Marshal Saab has been saying, कि diplomacy can take time. In war timing is very important, so we don't have to lose that timing in war. विंडो का जिक्र किया, जरा क्विकली बता दीजिएगा, ये तो हो गया कि क्या करना चाहिए, लेकिन अगर आप इसको तज्जियाकार की हैसियत से और वेटरन की हैसियत से देख रहे हो कि एक तरफ बयानात हैं, हमने अपनी नीयत का इजहार कर दिया, दूसरी तरफ मोबिलाइजेशन है, हमने बता दिया, तीसरी तरफ एग्रेशन है जो हमें पता है हुआ, और चौथी तरफ आपने कौम का जिक्र किया, कौम क्या इंतजार करे। अगर आप चारों एलिमेंट्स को देखें तो आपको क्या लगता है कि तस्वीर क्या बन रही है? देखिए जी, तस्वीर ये बन रही है कि वी आर कन्वर्जिंग, वी आर सिनर्जाइज्ड, एंड वी मस्ट अवेल दिस वेरी ब्रीफ विंडो कि जिसमें हम वो कर दें जो हमें करना चाहिए। अगर हम अभी भी तलत साहब विद योर परमिशन, अगर हम अभी भी रिस्ट्रेन करते हैं, ये तो हमने 2019 में भी किया था, उसका क्या नतीजा निकला? 5 साल बाद हम फिर वहीं खड़े हैं। हमने उस वक्त 2 जहाज गिराए, हमने उस वक्त वी वांटेड टू बी नाइस बॉय, हमने अभिनंदन को वापस कर दिया, और आज फिर वही साइक्लिक मनूवर वो हो रही है। तो ये हमें कहीं मैडनेस ये रोकनी है ना, हमें कम से कम इतना करना चाहिए कि वो अगले 10 साल जो है ना आराम से बैठें और हम अपनी तरक्की के ऊपर इतना कितना होता है उसके ऊपर भी आते हैं। बट आमिर, आपकी रीडिंग क्या है, सारा दिन जो डेवलपमेंट्स होती रही, हम यही इसका तजिया करना चाह रहे थे कि हिंदुस्तान क्या करना चाह रहा है। बार बार कहता है कि हमने शहर बंद कर दिए, हमने मिसाइल मार दिए, हमारी तरफ से जब कहा जाता है कि रिस्पांस आएगा तो पता चलेगा, तो आपकी मालूमात भी यही है कि हमारा रिस्पांस नहीं आया, वो फॉग ऑफ वॉर अपनी पॉपुलेशन पर क्रिएट कर रहे हैं। देखें, जो सऊदी आ रहे हैं ना, सऊदी पाकिस्तान को किसी भी सिचुएशन में कमज़ोर नहीं देखना चाहते। मतलब ये मेरी इन्फॉर्मेशन है कि ये चाहे कितने मर्जी कारोबार कर रहे हो इंडिया के साथ, उनकी अपनी स्ट्रेटेजिक वजूहत है। इसके बाद हम यहाँ आते हैं कि हम पाकिस्तान में, कल दोपहर तक ये सिचुएशन थी कि शायद हम इस बात को इस तरह करें कि हम जश्न मना रहे हैं, हमने त्यारे गिरा दिए हैं और हम अपनी इंटरनेशनल वायलेशन को किसी हद तक किसी भी वजह से कुछ रोक लें, क्योंकि वो जवाब तो हमारे ऊपर उधार है। उन्होंने जो मज़ीद नया काम किया है, अब किसी के पास कोई गुंजाइश नहीं है, कोई रास्ता नहीं है। कल तक जो लोग पाकिस्तान के अंदर खामोश थे किसी भी वजह से, जो यहाँ पे हर वक्त लड़ाई चाहते हैं, वो आज खुल के आ गए हैं दोबारा से कि बताओ तुमने जवाब नहीं दिया। मतलब पाकिस्तान को फंसा दिया है। इंडिया यही कर रहा है। इंडिया ने जो अब ये फॉल्स फ्लैग अभी शुरू किया जम्मू और कश्मीर का, कि जनाब बंद कर दिया हमने फलां, वो बिल्कुल चाह रहा है। लेकिन हमारे लोग इस लिहाज से ठीक है कि ठंडे होके सोच के फैसला कर रहे हैं कि हमने कब कहाँ मारना है। वरना उन्होंने जो आज पूरे दिन में कोशिश की है वो यही थी कि हम रिस्पॉन्ड करें। अब बेशक आदिल अल जुबैर आ रहे हों, मार्को रूबियो ने हमसे टेलीफोन पे बात की हो, अर्दवान ने की हो, नवाज शरीफ आज आर्मी चीफ और प्राइम मिनिस्टर के साथ बैठे रहे हों, और शाम में फिर पिंडी में भी बाकी फोर्सेस की मीटिंग भी हुई हो, जवाब तो हमने देना है। और ये जितना डिले कर रहे हैं, मतलब एक जज्बाती पाकिस्तानी की हैसियत से उतना ख़राब कर रहे हैं। लेकिन फिर समझ के अगर हम देखें कि हम रिपोर्ट कर रहे हैं चीज़ों को, तो बिल्कुल वो करना चाहिए जो हमारी फोर्सेस सोच के करें, एक प्रॉपर जवाब दें। फिर ये आदिल अल जुबैर आएँ, वो मार्को रूबियो करें कि भाई ये तुम वो बच्चों की तरह लड़ाइयाँ होती है ना हमारे इलाके में, किसी को पिटवाना हो तो एक थप्पड़ मारे तो उसको पकड़ लो, जब फिर डाल लो और फिर दूसरा मारता जाए। तो पाकिस्तान को ये अब इस चक्कर में डाल रहे हैं। तो ये तो हो गया आप सिनारी। तो इस रूम का कंसेंसस यही है कि उसी तरफ जा रहा है, उसी तरफ जाना चाहिए। ज़रा मैं चाहूँगा कि आप इसको मज़ीद एक्सपेंड कीजिएगा। हिंदुस्तान ने इस जो उसको वक्त मिला उसको इस्तेमाल किया 2 तरीके से। एक तो उन्होंने हमारी कैपेबिलिटी को असेस करने की कोशिश की, दूसरा हम पर दोबारा से इल्ज़ामात धरने की कोशिश की कि देखिए पाकिस्तान तो ये छोटी मोटी वारदातें कर रहा है, कभी 4 मिसाइल वहाँ पे दाग रहा है, कहाँ पे हमारे पे ड्रोन मार रहा है और हम उसको देखें इंटरसेप्ट कर रहे हैं। अब ख्वाबिदा कैफियत के अंदर उन्होंने एक F-16 भी गिरा दिया है। तो जितना डिले होता जाएगा उनके पास प्रोपेगेंडा फैलाने की विंडो भी तो बढ़ती जाएगी। But they are losing these psyops. They are absolutely losing. No one is buying it. भारत के अवाम is not buying it.
दे आर क्वेश्चनिंग। हुआ क्या है कि हमारे यहाँ पर डिवीजन मौजूद थी, पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिकल सोशल पोलराइजेशन थी, हम सब तो इकट्ठे हो गए और भारत के अंदर अवाम वहां से उठ के सवाल कर रहे हैं। मीडिया तो चले, आपका गोदी मीडिया है कि आपने सारा उस पर पंजे गाड़ के रखे हुए, आपने उसमें इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा कर रखी है, भारत की मीडिया की मैं बात कर रही हूं, लेकिन पॉलिटिकल पार्टीज आपकी कल तक साथ नहीं थी, आज सुबह तक साथ नहीं थी, जब तक कि आपने जबरदस्ती ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में इंडिया ने सबको इकट्ठा बिठा नहीं लिया। कांग्रेस तो कल तक आप पे सवाल उठा रही थी, महबूबा मुफ्ती तक आपसे सवाल कर रही थी मकबूजा कश्मीर में, मतलब जो आपकी एलाई बनी हुई थी मकबूजा कश्मीर में इलेक्शन से पहले तक। सो नोबडी इज बाइंग, नो मैटर व्हाटएवर इंफॉर्मेशन वॉरफेयर इन मोदी ट्राइज और द इंडियन गवर्नमेंट ट्राइज। सेकंड, आपकी इजाजत से मैं एक पॉइंट जरूर कहना चाहूंगी, दिस हैज टू बी रीइटरेटेड कि हम सब अपनी रियासत के साथ खड़े हैं, अपनी आर्म्ड फोर्सेस के साथ खड़े हैं, एतमाद भी है, हमें एतबार भी है, लेकिन उसके साथ साथ आज मैंने सैकड़ों लोगों से बात की है, आज भी, आज तक भी लोग इस कदर गुस्से में हैं भारत के साथ, एंड दे आर डिमांडिंग कि आप भारत को जवाब क्यों नहीं दे रहे। वो कह रहे हैं कि आप शहरी मत मारें, लेकिन हमें भारत के फौजी मरे हुए नजर आने चाहिए, हमारे दिल ठंडे होंगे। नंबर वन, तो तारड़ साहब ने कहा है ना कि हमने 42 मारे, 50 मारे हैं, 50 मारे। वो कहने के लाइन ऑफ कंट्रोल के क्रॉस हमने 40-50 बिल्कुल हमने मारे हैं, डेफिनेटली, इसमें कोई शक नहीं है। दूसरा, लेकिन इससे ज्यादा चाह रहे हैं बिकॉज, और ये प्रेसिडेंट सेट नहीं होना चाहिए तलत साहब, कि आप पाकिस्तान के मेन लैंड, पाकिस्तान के अर्बन सिटीज पे आके मिसाइल भी दाग दें, ड्रोन्स भी आप लेके आ जाएं और आपको कुछ ना कहा जाए, उसके बाद सालसी हो जाए। अच्छा शोभा, इंटरनेशनल रिलेशंस का स्टूडेंट होने के नाते कुछ थोड़ा सा मैं एहतियात भी बरतता हूं, क्योंकि मैं जो पब्लिक डिमांड के ऊपर जो रिस्पांस है मैं ज्यादा तकिया नहीं करता हूं, ये लेकिन ये पब्लिक डिमांड है पॉलिसी से जुड़ी है, हमारी पॉलिसी है डिक्लेयर्ड, हाँ कि हमारी पॉलिसी का हमने जवाब देना है। बट इसके ऊपर वापस आइएगा कि हमने इस वक्त जो माहौल देखा है उसके अंदर फिर एग्जीक्यूट हमें करने हैं ये प्लान्स। मैं मीडिया पर भी देख रहा था, लोग वक्त बता रहे हैं, कोई काउंटडाउन शुरू कर रहा है, कोई बता रहा है कि जी इतने टारगेट्स लॉक हो गए, ऐसी मालूमात तो कोई शेयर नहीं करता ना, ये भी मेरे ख्याल में वजाहत कर देनी चाहिए। ऐसा ही है, बल्कि जो जिम्मेदारान इस फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन को डील कर रहे हैं, आई हैपन टू स्पीक टू वन ऑफ द जेंटलमैन, मैंने कहा फॉर गॉड्स सेक नॉक सम सेंस इनटू द ब्रेन्स ऑफ सम इम्पोर्टेंट मीडिया पर्सन्स, कि जिनको इस वक्त ये भी मालूम है कि अब आप जानते हैं अच्छी तरह एसपीडी वुड नेवर कम अप विद एन एक्यूरेट उसकी मिसाइल की रेंज, या वो एक टैक्टिक होता है, गिमिक होता है, लोगों को बताया जाता है, मगर एक्यूरेट जो फिजिबिलिटी होती है वो सिवाय एसपीडी और अल्लाह के किसी को नहीं पता होती। तो आज या कल उनमें से कुछ लोगों को भारतीय वजीर आजम के घर तक भी जाना था। इट वॉज लाइक ऑल द सिटीज ऑफ इंडिया। होता यह है कि इट्स सॉर्ट ऑफ अ प्रोवोकेशन। व्हेन आई वाज रोमिंग अराउंड मुरीद के yesterday, people who were not educated as we are, उन्होंने भी सिर्फ ये पूछा कि जब तक कुछ होता नहीं है, they were very sensible by the way, I saw some very sensible comments from them। उन्होंने कहा जब तक कुछ होता नहीं है पाकिस्तान अपना जवाब तैयार करेगा, जाहिर है फौज अपने मामलात देखती है, हम ये नहीं कह रहे अभी जाएं, लेकिन जो लोग ये कह रहे हैं कि हम यूं कर देंगे वो कर देंगे, उनसे पहले ये बताएं कि बॉर्डर पे रहने वाले लोग बहुत करीब हैं इस वक्त, हमारे लिए प्रॉब्लम्स न क्रिएट। ये एक अहम नुकता है, मैं उसके ऊपर आऊंगा, क्योंकि जंग के बराबर में खतरात या उससे ज्यादा खतरात होते हैं गैर यकीनी सूरत हाल की। अगर आप आज स्टॉक मार्केट को देखें तो नियरली 7 बिलियन के वर्थ जो है वो स्टॉक नीचे गिरे हैं। तो अगर आप ये कंटिन्यू करते रहेंगे गैर यकीनी सूरत हाल और क्लैरिटी नहीं आएगी तो मामला खराब रहेंगे। विंडो ऑफ टाइम का आपने जिक्र किया था, ये कौन सी खिड़की है और ये हमें 48 घंटे बाद भी दस्तयाब क्यों नहीं होगी, इसके ऊपर जरा तवज्जो दीजिएगा। देखिए, इससे पहले मैं एक कमेंट देना चाहूँगा। आपने कहा कि हमें पब्लिक डिमांड पे नहीं जाना चाहिए। मेरा आर्गुमेंट ये होगा कि हम पब्लिक डिमांड के लिए अगर ना भी जाएं तो फिर नतीजा क्या होगा, भारत इसको न्यू नॉर्मल बना देगा। ठीक, तो हमें प्रेसिडेंट सेट हो जाएगा, प्रेसिडेंट सेट हो जाएगा और अगली दफा ये तो गिवन होगा कि हम इतना कुछ कर लेंगे, पाकिस्तान ने कुछ नहीं करना। तो वेयर इज दैट, यू नो, फिर वो हमारा वो सारा ऐसे वो रेड लाइन कहाँ गई? वो मैं एक थ्योरी की बात कर रहा था कि पब्लिक डिमांड के ऊपर वॉर्स नहीं लड़नी चाहिए, लेकिन हमारी तो पॉलिसी है ना, वो तो हमने कह दिया, तो हमने नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के एलामिये मौजूद हैं, हमने कह भी दिया बयानात। तो विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी, विंडो ये है कि देखिए दुनिया हमें देख रही है। मतलब पहले तो शायद क्योंकि यूरोप का थिएटर, गजा जो है ना, दुनिया का फोकस उधर था, कश्मीर के ऊपर भी कोई बहुत ज़्यादा फोकस नहीं था। अब सारी दुनिया हमें देख रही है, न्यूक्लियर आर्म स्टेट्स हैं, कॉन्फ्लिक्ट है, दोनों तरफ जो है एक जो है ना इमोशन भी जो है, उसमें भी एक जो है सेंटिमेंट का भी एक राइज है। तो वो बड़ा केयरफुली ये देख रहे हैं कि हमने कहाँ इंटरवीन करना है,
अमेरिकन प्रेसिडेंट ने स्टेटमेंट दी, दूसरे लोगों ने भी कहा कि जी काम डाउन, या ये ऐसा हो गया वैसा हो, लेकिन कहीं पे तो उन्होंने भी सोच के रखा होगा ना कि कहाँ पे हमने इनके हाथ पकड़ने हैं। फिर हमारी मजबूरियां जो वो हमारे आड़े आ जाएंगी, हमारे इकोनॉमिक, फिर आफ्टर मैथ ऑफ व्हाट वी कुड हैव डन। तो बजाय इसके कि कल हम यहाँ बैठे हुए रिग्रेट कर रहे हों कि अगर हम उससे पहले ये कर लेते तो आज हम डिप्लोमेसी को भी एक पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ से डील कर रहे होते, बजाय इसके कि हम किसी भी नेगोशिएशन टेबल पे जाएं और हम ये अफसोस के साथ या रिग्रेट के साथ बैठे हों। That is what I meant when saying कि जी दरअसल इसमें एक चीज़ बड़ी सब मैटर कर रही है। आई विल क्विकली ऐड कि इस वक्त पाकिस्तान की विंडो ऑफ टाइमिंग जो आप कह रहे हैं, पाकिस्तान को इस वक्त एक मुसद्दिका जो इंटेलिजेंस इतलात ये आ रही हैं, ऑन द अदर साइड ऑफ द बॉर्डर देयर इज़ मैसिव मुस्लिम पॉपुलेशन, और इंडिया ने जहाँ पर अपनी एयर डिफेंस सिस्टम की बैटरीज इंस्टॉल की रखी हुई हैं वो मेनली राजस्थान, डोमिनेंटली जम्मू एंड कश्मीर और पंजाब है। और आपको अच्छी तरह पता है जो कल वाला गिमिक हुआ है पाकिस्तान के अगेंस्ट, वो यही था कि पाकिस्तान सिख कम्युनिटी और मुस्लिम कम्युनिटी की रिफ्ट बढ़ाई जाए। तो सर मे बी आप मुझे ज़्यादा बेहतर जानते हैं, बट दैट्स वन कंस्ट्रेंट जो पाकिस्तान इस वक्त जिसके ऊपर अपना एक होमवर्क कंप्लीट करके जाना चाह रहा है, कोलैटरल डैमेज। ऐसे नहीं है कि हम सिर्फ इस पे जाएं कि हमारी माशी हालत बड़ी कमज़ोर है। हमारी हालत उस दिन भी बहुत कमज़ोर थी जब यहाँ साउंड बैरियर टूटा था और डॉक्टर कदीर मरहूम का एक बयान ने पाकिस्तान को वापस जोड़ा था। ये जो नेशनल सेंटिमेंट्स है ना, आप उनको माशियत में नहीं ढूंढ सकते। हर चीज़ को कि जी हम ये कर लेंगे तो फिर तो आप मार खाते जाएं और घर छोड़ते जाएं और पीछे चलते जाएं कि इनको रोटी दे दें, बॉर्डर वालों को। भाई बॉर्डर वाला बैठा है तो ड्रोन पिंडी में नहीं आया, ठीक, मतलब ज़रूरत है हर पाकिस्तानी की जान के बचाने की। उसमें फ़ौज का जवान भी है, उसमें आम आदमी भी है, लेकिन ये जो अपॉर्चुनिटी मौजूद है जो इंडिया हमें फराम कर रहा है, आज जो न्यू नॉर्मल की बात हो रही है ना कि जी ठीक है फिर अगली दफ़ा भी ठोक देना, फिर कह देना, फिर वो कोई सऊदी आ जाएगा, कोई अमरीकी आ जाएगा, कोई ईरानी आ जाएगा। नहीं, इस तरह नहीं होता। जब कौम ने जिंदा रहना है ना तो उसको अपनी इज्जत के साथ रहना है और उसका रिस्पॉन्ड दे के रहना है। फिर बेशक आप मीडिएशन करा लें, मीडिएशन तब होगी ना जब दोनों राजी होंगे। अगला कह रहा है मैं तुम्हारे से बात नहीं करता, वो हमारा एक वज़ीर आज़म वर्ल्ड कप नहीं उठा के ले आया था सालसी के चक्कर में, आपको भूल गए आप? जब हम सारे यहाँ जुतियां खा रहे थे कि जी आधा घंटा दोपहर धूप में खड़े हो जाओ, वो सालसी थी ना भाई, दूसरा मान ही नहीं रहा तो सालसी किस चीज़ की? हमारे से कोई बात करे, हम बताएं कि भाई आपने उसे रोका क्यों नहीं, क्योंकि आप तो उसको फंडिंग कर रहे हैं। हमें फंडिंग कौन कर रहा है? हम तो पड़े हुए हैं कभी IMF के पीछे, कभी सऊदी अरब के पीछे, कभी UAE के पीछे, कभी चाइना। बहरहाल खुल के आया है चाइना, हमें उसको नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। हमारे पास है, तुर्की ने रिस्पॉन्ड बड़ा अच्छा किया है। ये जो फौजी बातें हैं ना ये करेंगे, लेकिन ये अवाम की जो बात है ना, अगर आप इसको भूल जाएं तो फौज के पीछे कौन है? अगर ये भी टूट गया कि जी हम तो बातें करते थे और हमारे पीछे, ये तो कुछ कर ही नहीं सकते, बस ये भरम है, ये खत्म हो गया तो कुछ नहीं रहेगा। अवाम के सेंटिमेंट को हम बिल्कुल अंडरमाइन नहीं कर सकते, बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं, नंबर 1 ये बात। नंबर 2 कि आप जितना डिले करते जाएंगे, जो एजाज साहब ने कहा, उतना आपके हाथ से टाइम स्लिप होता चला जाएगा और उतना भारत को आपके ऊपर एज से एज मजीद बढ़ता चला जाएगा। जरा इसके ऊपर हम बात करेंगे कि हिंदुस्तान की तवक्कुआत क्या है, उनकी तरफ से जो बयानात आ रहे हैं वो ये हैं कि हम पाकिस्तान की तरफ से अगर कार्रवाई हो तो हम उसका जवाब देंगे। हम इसको आम फहम ज़ुबान में कहेंगे कि फिर मारा मारी शुरू हो जाएगी, फिर हमारे जवाब पर उनका जवाब आएगा, फिर उस जवाब पर हमारा जवाब आएगा। ये मामला कहाँ पर जाकर रुक सकता है? क्या हमें इस वक्त ये बात करनी चाहिए, सिर्फ ये फोकस करना चाहिए कि हिंदुस्तान ने जो कार्रवाई की, अगर 2019 में हमने उनके साथ सही तरीके से ठोक कर डील किया होता तो आज वो हमारे साथ ये ना कर रहे होते? ब्रेक के बाद